Good morning class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we're gonna cover the other half of the chapter number 13, that is magnets. So let us start with today's first topic, that is attraction and repulsion. We have already studied that the magnet exerts some forces, and that forces are the basic property of a magnet, right? And these forces are attractive forces and repulsive forces. So when two like poles, that means a magnet have two poles, and when two like or the similar poles are made to come in contact with each other, or are made to come in close with each other, then they repel each other. That means they oppose each other, they try to run away from each other. And opposite is true for the unlike poles. The unlike poles, that is the north pole and the south pole, the dissimilar poles, when they are brought close to each other, then they attract each other. Now, the test of magnetism is given by repulsion. Attraction is a property of magnet, but the true test whether the object we are experimenting on is a magnet or a simple piece of iron depends on the fact that it shows the property of repulsion. How? An activity has been given in your book to demonstrate this fact. That is, two objects are taken, one iron rod and one magnet. They are similar looking in their morphology. So what happens when they are brought near to the magnet? So at first both of them attracts, but when they are opposed, that means when dissimilar sides are made to come close with that magnet, then one part attracts, that is one piece attracts, and the other one just repels. So the piece that attracts is shows that it has not been able to show the property of repulsion, so it's just a piece of iron that is simply experiencing the attractive force. But the other one that shows repulsion, that means it has developed in north or south pole, that is the unlike poles as compared to the magnet we are using already. So it proves that this one which attracts and repels shows both the property is the magnet, and the other is just a single rod piece, iron rod piece. एक्शन और रिपल्शन, हमें पता है कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपल्स करेगा, या तो वो अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भगाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। तो क्या होता है जब लाइक पोल्स, जैसे कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब हम नॉर्थ पोल के पास दूसरा नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो ये हो गए सिमिलर पोल्स, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब हम नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लेके आते हैं, तो ये डिसिमिलर पोल्स हो गए और अनलाइक पोल्स हो गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि जो रिपल्शन है वो क्वालिटी होती है मैग्नेट की, उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि मैग्नेट है या बस वो एक आयरन का पीस है। तो हमने क्या किया, दो हमने बार्स लिए, जिसमें कि एक बार मैग्नेट थी और दूसरा एक सिंपल पीस था आयरन का। देखने से पता नहीं लग रहा था, तो हमने एक ओरिजिनल मैग्नेट ली। मैग्नेट के पास पहले दोनों रॉड्स का सेम पोल लेके आए। जैसे हमने एक साइड रख ली और उसको हम करीब लेके आए उस मैग्नेट के, तो हमने देखा कि दोनों ने अट्रैक्ट किया। फिर हमने क्या किया, उनको पलट दिया। पलटने से क्या हुआ, जो नॉर्थ पोल था अब वो पीछे चला गया, साउथ पोल आगे आ गया। तो जो मैग्नेट थी उसने रिपेल किया। क्योंकि लाइक पोल्स साथ में आ गए। और जो दूसरी रॉड थी उसने अट्रैक्ट किया। उसने अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ रॉड थी, वो मैग्नेट नहीं थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मैग्नेटिज़्म का ध्यान रखना हो, अगर हमें पता लगाना हो कि ये मैग्नेट है या फिर कोई ऐसे ही नॉर्मल रॉड है, तो हम कैसे पता लगाते हैं? हम रिपल्शन से पता लगाते हैं। अगर वो रिपल्शन शो करती है तो वो मैग्नेट है, नहीं शो करती है तो वो मैग्नेट नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फाइंडिंग डायरेक्शन. It has been discovered that Earth itself acts as a magnetic pole due to the magnetized material, that is lava and things that is there in the Earth's crust. Earth acts as a huge magnet. So what happens? There are two poles, that is North Pole and South Pole, and these two poles are opposite to the geographical north. Like the geographical part is which is plotted on the map. So if map is saying that this is the north geographical pole, that means that this pole acts as the south pole of the Earth's magnet. Why? Because north attracts the south, and similarly north
attracts the south and south attracts the north. So like this we can come to know that earth itself is a magnet, is a huge magnet. So whenever a bar magnet or any other magnet is suspended freely, it points in the south pole and the north pole. It aligns itself into an arrangement that indicates the direction of north and the south pole. So this is the principle behind the magnetic compass, that is a device which is used to measure the direction on the earth, right? So the compass north points out to the north pole and the compass south points out to the south pole of the earth. Now what happens, let us take this topic in Hindi. अर्थ के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो अर्थ का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं. उसमें बहुत सारी मॉल्टन चीज़ें, आयरन वगैरह पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थ खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट के जैसे एक्ट करता है. तो जो जोग्राफिक नॉर्थ है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, वो एक्चुअली जो अर्थ के अंदर की मैग्नेट है उसका साउथ पोल बनता है. क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं ना, और इसी तरह से जो अर्थ का जो जोग्राफिक साउथ है वो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करता है. तो जब हम कंपास को लेके आते हैं, मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो जब हम कंपास को लेके आते हैं तो कंपास की निडल तो वो पॉइंट करती है साउथ पोल की डायरेक्शन में साउथ पार्ट और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, जो कि ऑपोजिट होते हैं जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ के. ठीक है, इतना समझ आया? ये थी डायरेक्शन. इसी तरह से हम कंपास को और बार मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं अर्थ की सरफेस पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. पहले जो स्कॉलर्स वगैरह थे उनके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं, तो वो यही सब तरीके इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि हमारे किसी भी आयरन के या स्टील की कोई भी ऐसा मेटल जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको रिपीटेडली एक मोशन में, एक मूवमेंट में अपनी मैग्नेट के आसपास रखें या आसपास रब करें, तो उसके अंदर भी एक टेम्परेरीली मैग्नेट जनरेट हो जाती है. ठीक है, उसको हम टेम्परेरी इंड्यूस्ड मैग्नेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, जनरेशन के प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. सो लेट मी रिपीट दिस टॉपिक फॉर यू वंस अगेन. सो द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोकिंग, दैट इज़ रबिंग अ मैग्नेटिक मटीरियल अगेन एंड अगेन on a particular direction, in one particular direction, so that the alignment of the very poles in the magnetic material gets arranged in a particular set, so that it becomes a temporary or induced magnet. This whole process is known as magnetization. Okay, by magnetization we produce various temporary magnets. So this is of course a picture of your book, that is uses of magnets. It's quite a very small topic, but it's equally essential than the rest of the topics, right? Now what are the uses of magnets? So first is, it is used as a compass needle, where we have already seen it in finding the direction topic, right? The next one is, it is used to pick up the iron scrap. When there are heaps of irons, coins and stuff like that mixed with other garbage and useless things, then our magnet is being used to pull up the magnetic material from that heap or from that junkyard. And in hospitals too, what they do in order to remove any splinters, steel splinters are sort of clippings that are capped, that are embedded in the flesh, so that the flesh can be kept intact for better recovery. So to remove those splinters, what we do, we use magnet instrument to pull those steel splinter and iron outside the wounds. Third use is in electric bells. Like you must have seen the doorbells with various new patterns coming up nowadays. So in doorbells, motors, telephones, so these are the these are the things where magnet is being used. You must have seen fridge. You just let your fridge open and after some time it goes back to the closing mode. So this is what happens. There is magnet in its door that pulls the door back and fridge is closed. Fourth one is in maglev trains. So what is maglev trains? It's a very new concept. You must have seen in the Hollywood movies if you are very used to seeing them. That is, you must have seen their rail tracks are laid and the trains and buses are sort of floating in the air. They are not touching the railings. So this is done with the help of magnets. What happens? Magnets are arranged on the rail tracks and in the wheels of the train. So what happens, they use the property of repulsion. They repulse each other, the track magnet and the
rail and the trains or metros magnet, they repel each other, and thus various noise, and this various noise and wear and tear is protected, and this much energy is used to maintain the speed of the train. This is the very new concept, but it is used to a higher extent nowadays, not in India but in outside countries. Now last one is magnets are used in tapes, right? Video tapes, we have seen magnets on ATM and hard disk cards. You must have seen a chip, that is iron chip. Now SBI have permitted that permanent iron chip. Without it you won't be able to extract your cash from the machines. Okay, now let's take this topic in Hindi. क्या यूजेस हैं मैग्नेट्स के? कंपास निडल हमने पहले ही फाइंडिंग इन डायरेक्शन वाले टॉपिक्स में पढ़ा है कि कंपास निडल इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? हमें डायरेक्शन देखने के लिए। जहाँ जिस एरिया में हम खो जाते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा नॉर्थ क्या है साउथ क्या है? तो वो हम कंपास निडल की हेल्प से पता लगाते हैं। दूसरा है कि जहाँ पे बड़े बड़े जंक यार्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे आयरन स्क्रैप पड़े रहते हैं, मतलब आयरन के, लोहे के सामान, स्टील के सामान, ये सब और बाकी सारे सामान के साथ मिला हुआ होता है, तो उसको छांटने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी मैग्नेट लाते हैं, उसके ऊपर उसको हम जंक के ऊपर घुमा देते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी आयरन का सामान है वो सब मैग्नेट पे चिपक जाता है और बाकी गार्बेज वहीं के वहीं रह जाता है। हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है। स्टील स्प्लिंटर्स होते हैं। स्प्लिंटर्स होते हैं एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो स्प्लिंटर्स बहुत तरह के होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे फ्लैश को एक जगह रखने में काम आता है। तुमने देखा होगा अगर कभी मूवीज़ देखते हो, हॉलीवुड मूवीज़, तो उसके अंदर जो टांके होते हैं वो आयरन के जैसे होते हैं, यानी कि वो स्टील के लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब मांस सारा फ्लैश रिकवर हो जाता है तो उनको निकालने के लिए भी चाहिए, कोई आयरन का पीस तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको निकालने के लिए भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, और मैग्नेट की हेल्प से आसानी से बिना मांस को फाड़े वो निकाल लेते हैं। मतलब बिना मांस को फर्दर फाड़े, क्योंकि फटा तो वो ऑलरेडी होगा थोड़ा सा, बट पूरा डैमेज नहीं होने देते हैं। इस तरह से आराम से निकाल लेते हैं। तीसरा यूज़ होता है जो बेल्स होती हैं घरों में, जो बेल्स होती है, मोटर, टेलीफोन वगैरह, इन सब में हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। जैसे तुम देखो, फ्रिज है तुम्हारे घर पे, तुमने फ्रिज का गेट खोला और वो खुद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेट होती है। इस तरीके से वो खुद बंद हो जाता है। फोर्थ यूज़ क्या है, मैगलिफ ट्रेन्स। तो मैगलिफ ट्रेन्स क्या होता है, वही, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में यूज़ नहीं होता है, फ़ॉरेन में यूज़ होता है। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, जो मेट्रो ट्रैक्स जो होते हैं, वो तुमने देखा होगा, कुछ कुछ मूवीज़ में भी दिखाई गई है ये चीज़ कि ट्रैक और रेल के बीच में गैप होता है, लेकिन रेल बहुत तेज़ी से जा रही है, मेट्रो बहुत तेज़ी से जा रही है, आसमानों में भी जा रही है। ठीक है, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो ट्रैक्स लगाते हैं, उनके ऊपर मैग्नेट्स लगा देते हैं। तो जब उनके ऊपर वो मैग्नेट्स लगा देते हैं और मेट्रो के नीचे या फिर रेलवे के नीचे क्या करते हैं, उनके पहियों में भी मैग्नेट्स लगा देते हैं। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने में क्या होता है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो जो हम खींच करके अजीब सी आवाज़ आती है ना जब ट्रेन चलती है, एकदम से उसके ऊपर रगड़ती है ट्रैक के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत एनर्जी लूज़ हो जाती है। तो उस एनर्जी लॉस को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं, उनके बीच में जितना गैप रहेगा उतना ही एनर्जी यूज़ होगी स्पीड बढ़ाने में, ना कि वो जो नॉइज़ की वजह से एनर्जी इधर उधर फैल जाती है, वो सब चीज़ें बच जाती हैं। इसको हम मैगलेव ट्रेन्स या मैग्नेटिक लेविएशन बोलते हैं। और ये इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए उनके बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। देखा होगा एक रेल चल रही है, उसके थोड़ा सा ऊपर दूसरी रेल चल रही है, उसका रीज़न यही होता है, ये मैगलेव ट्रेन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ETM हार्ड डिस्क, और इन सब में भी चिप देखी होगी, वो मैग्नेट यूज़ होती है। The last topic of this chapter is how to keep magnetization safe. That is, we have seen how to make temporary or the induced magnets, we have seen permanent magnets. So what happens after a long period of time, if these magnets are not stored carefully, then they lose their property. And what is the basic property of a magnet? That is attraction or repulsion. So if heated strongly, hammered or handled roughly, they're going to lose their property. So in order to store these magnets, we need to keep certain points in mind. That is, the magnets are kept such that their unlike poles are in close proximity than the like poles. Other one is that a wooden piece must be stored in between the magnets in order to keep it in its perfect magnetization state. Right, now the next thing is कि one thing is called magnetic keepers. That is, the iron pieces are kept by the side of the magnets to protect its demagnetization. So these things are known as magnetic keepers.
लेट्स टेक दिस टॉपिक इन हिंदी, दैट इज़ हाउ टू कीप मैग्नेटाइजेशन सेफ। तो हमने क्या देखा कि बहुत टाइम के बाद है ना मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। क्यों खो देता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्यों खो देता है? अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा हीट कर लिया, या फिर हमने बहुत ज़्यादा उस पर हथौड़ी मार दी, या फिर हमने उसको ठीक तरह से नहीं रखा, तो वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगी। उसके बाद वो हमारी किसी काम की नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें उसको अच्छी तरीके से स्टोर करना होता है। तो क्या तरीके हैं? पहला तो ये है कि जो अनलाइक पोल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, तो ये दोनों पोल्स को पास रखना है और लाइक पोल्स को दूर रखना है। इससे मैग्नेटाइजेशन बना रहता है। दूसरा पॉइंट है कि इन दोनों पोल्स के बीच में या फिर दो मैग्नेट्स के बीच में हमें एक वुडन मटेरियल डाल देना चाहिए, क्योंकि वुडन तो मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे वो मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा। तीसरा पॉइंट है, हमें मैग्नेटिक कीपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं? जैसे हमने दो मैग्नेट स्टोर की, तो हमने क्या किया, दो आयरन के पीसेस लिए और उनके एंड के पास हमने उनको रख दिया स्टोर करने से पहले। उससे क्या होगा, एक तो उन आयरन के रॉड्स को ही हम, या उन आयरन की पीसीस को ही हम मैग्नेटिक कीपर्स कहते हैं। इससे क्या होगा कि मैग्नेट का जो मैग्नेटाइजेशन है, दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगी। एक और चीज़, कंप्यूटर लैपटॉप्स जो हैं वो ज़्यादा मैग्नेट के पास नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावर के सामने ख़राब हो सकते हैं। पावर यहाँ पे मैग्नेटिक पावर से मतलब है, मेरा वोल्टेज सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो विद दिस वी ऑलमोस्ट एंड दिस टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू कीप मैग्नेटाइजेशन सेफ। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड विदाउट बीइंग नोन, एंड इन ऑर्डर टू कीप आवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड आवरसेल्फ सेफ वी नीड टू नो हाउ टू कीप द मैग्नेट्स एंड हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। With this we end our chapter here. Assignment would be given to you by 5 p.m. today, and you have to read the textbooks after going through the video in order to do that assignment, submit it in neat handwriting on time, no late work. Good luck. Take